happy and cheerful good morning to all of you. Once again, this is Neetu ma'am. Welcome you all to the Defense Services Academy online education system. Now, we have started the NDA Crash Course 2020. This is a specially designed 70 days crash course to crack NDA exam. So what's the slogan? Abki baar NDA par. Yes, you must be ready to crack the NDA exam this time. So no need to fear when English ke liye Neetu ma'am is here. So just be ready to study English with Neetu ma'am. And as we have done the very first lecture of English for NDA exam, you must be getting some confidence to study English because English is a very interesting language. और जिन लोगों को English से डर लगता है, no need to fear. I'll make you confident in studying English, in understanding in English. अब आपको English से डर नहीं लगेगा because you will be confident in attempting the questions of English in NDA exam. So let's start. We have done 10 rules yesterday. Now today I'm going to start the 11th rule and we will study how the rules are designed for the NDA English and how you will apply those rules with the tricks in NDA exam so that you can score the maximum marks in English. So let's start. So students, as we have done some rules yesterday, now again with the revision of the rules of subject-verb agreement. Yesterday, the rules which we did, just a recap of the last rule, we did the rule with many and many a. ना जब हम many के रूल डिस्कस कर रहे हैं, I'm just recalling that अगर many लिखा है सेंटेंस में स्टार्टिंग में, a great many लिखा है या a many लिखा है, that means many, a great many या a many, इन तीनों का ही मतलब होता है कि it will take plural subject with them and it will take a plural verb with them. जैसे many students are absent today, a great many students are absent today, a many students are absent today. तो have you observed one thing? Many के बाद भी students, a great many के बाद भी students, a many के बाद भी students. That means all these three phrases are used with plural subjects. और plural subject हमेशा और हमेशा अपने साथ plural verb लेता है. Now the next part of this rule. जब भी sentence में many a आए, many an आए, अब a और an में क्या difference है? You know this very clearly. Many a consonant के लिए, many an vowels के लिए. But there is a difference. Many a के बाद हमेशा और हमेशा singular subject आएगा. Many an के बाद भी singular subject आएगा. For example, many a student is absent today. Many an orange is sweet. Okay, that means many a हो या many an हो. These both means singular. These three means plural. So you have to keep this thing in mind कि many से पहले कुछ भी आ जाए, that means plural. But many के बाद जहाँ ये a आ गया या an आ गया means एक. A means एक, an means एक, but for vowel के लिए तो many के बाद a आ रहा है, तो that means singular subject and singular verb. So I hope you have understood the rule of many and a many. Now come to this rule. See the rule. A number of, a large number of and large numbers of. तीनों अलग अलग हैं. A number of, a large number of, large numbers of. ये तीनों जब भी स्टार्टिंग में आएंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब बहुत ज्यादा. सी, अगर a number of या a large number of लिखा है, don't get confused with this a.
आपको नंबर और लार्ज नंबर पे ध्यान देना है। अ नंबर ऑफ लिखा है तो भी प्लूरल, अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा है तो भी प्लूरल। सी, ये तीनों फ्रेज प्लूरल सब्जेक्ट्स के पहले ही लगेंगे। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब ये लार्ज नंबर्स तो प्लूरल ही दिख रहा है। कंफ्यूजन कहाँ होता है बेटा? कंफ्यूजन इनमें होता है कि हमें लग रहा है अ नंबर ऑफ लिखा है। अब जैसे इससे पहले हमने मैनी आ का रूल किया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अ मीन्स सिंगल, बट नो, यहां पर अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, दोनों का मीनिंग नंबर्स ही समझना, दोनों का मीनिंग ये समझना कि बहुत ज्यादा। दैट मीन्स ये हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही लगेंगे। एंड यू ऑल एज माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नो दैट प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक देम plural verb. Now see, a number of students, a number of students, mind this, a number of, a number of, a number of के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको पता है हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। रिमेंबर दिस, हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो एज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इट इज टेकिंग हैव विद इट। द नेक्स्ट एग्जांपल, अ लार्ज नंबर ऑफ, सी देख, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहां प्रेफर वर्ब है। रिमेंबर हमने रूल किया था कल दैट जब भी प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूजन होना बच्चा, दिस इज अ ट्रिक, बॉयज प्ले एंड बॉय प्लेज। अब बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ सिर्फ V1, पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ V1, दिस इज V1। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ प्रेजेंट टेंस में V1 लगता है। नाउ सी, अगर यहां होता बॉय तो यहां होता प्लेस। हमेशा ये दो ट्रिक्स याद रखना, बॉय प्लेस, बॉयज प्ले। तो एज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इट विल टेक V1 विद देम। और एरर ऐसे ही आते हैं बेटा। हो सकता है आपको एग्जाम में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रिफर्स दे देते, बट यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी वर्ड इन द सेंटेंस। पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है कि कहां कुछ छुपा हुआ है। ओके, नाउ प्रेफर देयर मदर टंग। अब ये देयर किसके लिए लगा है? ये देयर लगा है पीपल के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक plural pronoun. There is a plural pronoun used for people. Mother tongue over second language. Okay, one more example, large number. Large numbers of boys. See, large numbers, plural subject. Boys again have gathered there. So I hope this rule is clear to you all. Now see this phrase, a number of boys. A number of boys. Is this correct? अगर मैं सेंटेंस को और कंटिन्यू करूं, a number of boys has gone there. अब आपको लगेगा a नंबर लगा है, मीन सिंगुलर है, तो has लगा है। a number of boys लगा है, ये यहां कनेक्ट हो रहा है, तो ये ठीक है। But this has is wrongly used here. This has is wrongly used here, क्योंकि a number of boys, a number of पूरा एक ही फ्रेज है जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक विद देम प्लूरल वर्ब। तो a number of boys have, a नंबर पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, a number of boys के साथ कनेक्ट हो रहा है, और a number of ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट एज यू ऑल नो take plural verb with them. So students, now a very interesting rule. और हो सकता है कई लोग अभी तक इन nouns को wrongly ही यूज कर रहे थे, but this is my assurance to you, आज के बाद ये चीज कभी गलत नहीं करोगे, एंड लाइफ टाइम इन वर्ड्स का रॉन्ग यूसेज करोगे ही नहीं। You will remember the rule for lifetime. Now check it out. ये सारे जो रूल्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते हैं।
These nouns are never used in plural form. We cannot make these words into plural by adding s or es. Don't get confused with the spelling. For example, see, मैं आपको एक example दे रही हूँ. Now, wood means material. लकड़ी, लड़की तो नहीं दिख रहा किसी को यहाँ पे, लकड़ी ही दिख रहा है. ओके, तो वुड मीन्स लकड़ी. नाउ सी, वुड्स मीन्स, अब ये वुड मीन्स लकड़ी, तो ये वुड्स मीन्स लकड़ियां. नो, दिस इज रॉन्ग. वुड इज अ मटेरियल नाउन. वुड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म बिकॉज as you all know, material nouns and abstract nouns are never used in plural. No matter इनकी spelling same है, लेकिन सिर्फ s लगने से wood का plural नहीं बनता है. Woods means forest. Woods means forest. Wood means लकड़ी. This table is made up of wood. ओके, दैट मीन्स ये टेबल लकड़ी से बना है. नाउ वुड्स के लिए, वुड्स आर डीप, डार्क एंड साइलेंट. दैट मीन्स जंगल बहुत गहरा, बहुत घना, बहुत डीप और बहुत शांत है. तो वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ऐसे ही नाउ वील सी सम ऑफ द वर्ड्स. नाउ सीनरी. सीनरी विल नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. अगर आपको एग्जाम में सीनरीज वर्ड आता है, दैट मीन्स देर इज एन एरर. दैट मीन्स देर इज एन एरर. सीनरी कभी भी सीनरीज नहीं बनता है, चाहे एक सीनरी हो चाहे बहुत सारी सीनरी हो. इट विल बी यूज्ड एज सीनरी. अगेन, पोएट्री. पोएट्रीज इज अ रॉन्ग फ्रेज. पोएट्रीज इज अ रॉन्ग वर्ड. फर्नीचर, फर्नीचर्स is a wrong phrase. I like the furnitures of the house. Wrong word. Now advice. Advice is abstract noun. Advice कभी भी plural में use नहीं होगा. You cannot write. He gave me many advices. This is wrong. This is wrong. बेटा पे अटेंशन, इन वर्ड्स पे कभी ना कभी सेंटेंस किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है. इट कैन बी स्पॉटिंग द एरर्स, इट कैन बी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इट कैन बी सेंटेंस कंप्लीशन. तो जस्ट पे रिकॉल ऑल द रूल्स, जस्ट मेमोराइज ऑल द वर्ड्स. नाउ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशंस इज अ रॉन्ग वर्ड. हेयर. हेयर को हेयर्स कभी मत बोलना. कई बार आप बोलते हो हेयर्स, हेयर्स कटिंग. रॉन्ग फ्रेज. हेयर. Now, business, mischief. Mischief नहीं होता, mischiefs नहीं होता. Now see, this is wrong. Mischief, एक बदमाशी या बहुत सारी बदमाशी. Both means the same. One more word is there, luggage. Luggage means सामान. सामान, एक सामान या उसमें बहुत सारा सामान, सब collectively luggage ही कहलाया जाएगा. Luggages, wrong word. Now bread. Now bread, रोजी रोटी, खाना. Breads अलग चीज. If you want to plural the packet of breads, you have to use I bought 2 packets of bread. You will not say I bought 2 breads. That is wrong. If you are talking about the slices, I ate 2 slices of bread. I ate 2 breads. Wrong English. Okay, now stationery. Stationery, pen, pencil, compass, book, notebook, all come into the category of stationery. Now stationaries is a wrong word. Now knowledge. Knowledge is wrong word. Postage, baggage. Now what do you mean by baggage? Bag and baggage, boriya bistar. Now pack your bag and baggage because after this you will be in NDA. Okay. Now jewelry. Jewelries is a wrong word. Breakage. Breakages is a wrong word. तो all these words. Money. हम monies नहीं बोलते हैं. All these words are never used in the plural form. एक और रूल है
इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। सी, इनसे पहले, नो मैटर ऑल दीज आर नाउन्स एंड वी नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, बट इनसे पहले, दीज आर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। रिमेंबर दिस। So I hope these words are clear. Now we'll check some of the example. Now see the example based on this. He gave me some information. Now some information, थोड़ी सी information. He gave me some information. Check out this. हम यहाँ पर he gave me some informations नहीं लिख सकते। हम इसकी जगह पर he gave me many informations नहीं लिख सकते। Now next is the scenery around Kashmir is beautiful. कश्मीर के आसपास की सीनरी बहुत सुंदर है। We cannot use sceneries. Sceneries is a wrong phrase. Okay, now see, here कभी भी hairs में use नहीं होता, but sometimes when the thing is counted on the fingers, उसके लिए हम नंबर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, I need 3 hairs of a black horse, 3 hairs of a black horse, गिनकर, तब वहां पर आप उसके लिए S लगा सकते हैं। अगर उसको काउंटेड फॉर्म में यूज किया जा रहा है तभी। बट इफ आई से योर हेयर आर ग्रे, हेयर आर ग्रे मीन्स तुम्हारे बाल सफेद हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकती योर हेयर्स आर ग्रे, दैट इज रॉन्ग। तो हेयर इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, बट टू द एक्सेप्शनल थिंग कि जब उसको काउंट करके लिया जा रहा है तभी हम उसके आगे नंबर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग रूल। अभी तक हमने सीखा कि जो प्लूरल नाउन होते हैं वो ही प्लूरल वर्ब लेते हैं। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? सपोज आई हैव रिटन बॉयज हियर। कैसे पता चल रहा है ये प्लूरल है? बिकॉज एस लगा है। बॉयज है तो यहां हम आर लगाएंगे, और अगर बॉय है तो हम इस लगाएंगे। ये बेसिक पता है। बॉयज आर प्लेइंग, बॉय इज प्लेइंग। ये एक लड़का, ये बहुत सारे लड़के। अब जो हम वर्ड्स करने जा रहे हैं, अब जो हम नाउन्स करने जा रहे हैं, इन नाउन्स में एस लगा ही नहीं है। ये नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट इन रियलिटी ये प्लूरल हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे ही यूज होते हैं। कौन से है वो नाउन? चेक इट आउट। कैटल, कैटल एक जानवर नहीं है, पूरा ग्रुप, अ हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड ऑफ कैटल मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। बट अगर यहाँ पे सिर्फ कैटल भी यूज है तो भी उसको कैटल का ग्रुप ही माना जाएगा। नाउ क्लर्जी, इन्फेंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट्री? इन्फेंट्री मीन्स सोल्जर्स हु वॉक ऑन फुट, पैदल चलने वाले सोल्जर्स। नाउ पोल्ट्री, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ पोल्ट्री, एग्स एंड चिकन्स एंड मीट, पोल्ट्री। नाउ पीजेंट्री, पीजेंट्री द फार्मर्स हु आर वर्किंग। Now children, gentry. What do you mean by gentry? Gentry means a group of highly socialized people, a group of high class people, a group of well settled people, rich class people, elite people. Now that is known as gentry. तो इन words में कहीं भी आपको एस दिख रहा है लास्ट में ना। अगर मैं ये चिल्ड्रन को अलग कर दूं, चिल्ड्रन आपको पता है कि प्लूरल है, बट बाकी वर्ड्स में कहीं आपको लग रहा है ना। वन मोर थिंग, पुलिस। ना पुलिस इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। पुलिस हैव कॉट द थीफ। क्यों ऐसा? बिकॉज बहुत लोगों का ग्रुप है। पुलिस इंस्पेक्टर हैज कॉट द थीफ। बट अगर पुलिस है, police is always taken as a plural subject, and plural subject will take plural verb with them. Check out the examples. Poultry are sold here. Now exam में कैसे आएगा? Poultry is, आपको याद रखना पड़ेगा, no matter these nouns look singular, but they are used as plural subject and plural subject take plural verb. Next, children are playing. ये तो easy है। कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स नहीं होगा। अब अगर आपको सेंटेंस दे दें कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स इज अ रॉन्ग वर्ड, कैटल इज करेक्ट। तो कैटल इज नहीं करना है,
और कैटल्स आर नहीं करना है, कैटल आर। ओके, नाउ जेंट्री आर वेल एजुकेटेड। अब जेंट्री के साथ इज नहीं आता, जेंट्री हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। नाउ हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड मॉब? सुना है मॉब कभी? मेनी टाइम न्यूज़पेपर में आप लोग सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे न्यूज चैनल्स में मॉब। मॉब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who are protesting, who are demanding, who are protesting against something, जो आंदोलन कर रहे हैं, गुस्साई हुई भीड़, जो अपनी आंदोलन के लिए गुस्साई हुई भीड़ है, जो आंदोलन कर रही है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं मॉब। मॉब is used specially for the people who are protesting against something or someone. Okay, now next, peasantry are working. Peasantry are working, that means peasantry काम कर रहे हैं. I hope this rule is clear to you. Next we will move forward to the next rule. Now see, the next rule is कि a plural noun or plural pronoun is used after these phrases. कौन कौन से? इनमें से कुछ हम कर चुके हैं. Now one of के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन आता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी, वन ऑफ द बॉयज, मैंने यहां लिखा है वन ऑफ, तो वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल ही आएगा. अब बॉयज तो हो गया नाउन, अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना है, वन ऑफ देम. ओके, अब सी, वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम, बात कितनों की हो रही है? सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर या प्लूरल? वन ऑफ द बॉयज, नाउ चेक आउट दिस, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? लड़कों में से एक एब्सेंट है, सब लड़कों में से एक एब्सेंट है. सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए singular verb. One more, check it out. Now see, one of them. Now one of them, them किसके लिए यूज हुआ? प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन. यही तो हमारा रूल है. A plural noun or plural pronoun is used after these phrases. तो one of the, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, तो one of the boys या one of them. That means one of the के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन. अब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन से कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक की हो रही है. उनमें से एक एब्सेंट है, लड़कों में से एक एब्सेंट है. एंड यू ऑल नो, एज यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड इज हियर. ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट फ्रेज. ईच ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. इज द सेंटेंस करेक्ट? यस. How is it correct? See, each of the के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए, this is plural. उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि बात each की हो रही है. लड़कों में से एक एब्सेंट है, बात किसकी हुई? each of the boys. अब each हो और हो, आइदर हो, नाइदर हो, हमने कल ही डिस्कस किया, ये दो यूनिट्स के बीच में लगता है. तो each of the boys है तो टोटल दो लड़के हैं, दोनों में से एक एब्सेंट है. ईच ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, दिस मीन्स दोनों में से एक. वैसे ही नाइदर ऑफ भी वैसे ही, एनी ऑफ आपको समझ आता है, एनी वन ऑफ मतलब एक की बात हो रही है. नाउ अ फ्यू ऑफ द बॉयज, अ फ्यू ऑफ द मीन्स थोड़े से. नाउ अ फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन चाहिए. नाउ वेरी फ्यू ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, जितने भी ये फ्रेजेस हैं, इनके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाउ चेक इट आउट, चेक इट आउट. यहां पर हमने लिखा अ फ्यू ऑफ. अ फ्यू ऑफ मीन्स थोड़े से, इनके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट. यहां तक क्लियर हुआ? अब हम ये देख रहे हैं, फ्यू ऑफ सिंगुलर नहीं प्लूरल है. प्लूरल के साथ इस लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा. क्लियर? नाउ चेक आउट द एग्जाम्पल.
वन ऑफ द बॉयज वॉज इनोसेंट, दैट मीन्स लड़कों में से एक इनोसेंट था, एक। वन ऑफ देम वॉज एब्सेंट, वी हैव डन दिस। ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से हर एक प्रेजेंट थी। आइदर ऑफ देम वॉज वर्किंग, दोनों में से हर एक काम कर रहा था। नाइदर ऑफ देम वॉज वर्किंग, दोनों में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा था। तो इन सब सब्जेक्ट में बात एक की ही हो रही है। और एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। तो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू. Next we will move forward to the next rule.